Hello everyone. So in the last class, we were discussing charging of capacitor through inductor and resistor. So in that, what we did, first I'm briefly summarizing the things. First we derived the expression for charge, okay, which is given by equation 4.32. And this is the journal expression representing the charging of capacitor in a LCR circuit. Then, depending upon the relative values of B and K, we studied three special cases. Now, what is B and what is K? When we did this derivation, उसमें हमने let किया था 2B is equal to R upon L and K square is equal to 1 upon LC. Okay, now depending upon these values of B and K, like we have done three special cases. In the first case, we did when B square is greater than K square. In this case, we saw that a charge is said to be overdamped or deadbeat. Then we studied the second special case when B square is nearly equal to K square, not exactly equal, but nearly equal to K square, such that under root B square minus K square is equal to a very small quantity H. Then in this second case, what we saw, in the second case, we saw that charge is critically damped, and this is just a transition case between non-oscillatory and oscillatory. Then we proceeded with the third special case when B square is less than K square. In this case, we saw that the quantity B square minus K square becomes negative. So under root B square minus K square is imaginary. And this third special case is the very important case. In this case, what we saw this expression for charge, and this represents a damped oscillatory charge. This sign function is representing the oscillatory behavior of charge, and this exponentially decreasing factor in the amplitude, this shows that these oscillations are damped, not undamped. Okay? So this equation is basically representing a damped oscillatory charge, जिसका जो amplitude है, that is basically dependent on exponential. So this function is exponentially decreasing with time. So we are saying that the charge is damped oscillatory. Next, what we saw that if we keep this resistance to be equal to 0, that means our LCR circuit becomes LC circuit. In that case, this amplitude becomes time independent. So amplitude becomes constant and the oscillations will be undamped oscillations. The oscillations will become simply harmonic. They will become undamped. They will no longer be damped if resistance is equal to 0. So this special case of LCR circuit reduces to the case of LC circuit which we already did. ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी देखा था. ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हमारा जो LCR सर्किट है, इसका जो थर्ड स्पेशल केस है, ये LC सर्किट जो हमने पहले पढ़ा है उसमें रिड्यूस हो जाता है व्हेन वी कीप R इक्वल टू 0, क्योंकि R इक्वल टू 0 करते ही जो हमारी चार्ज की एक्सप्रेशन है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो हमारा टाइम इंडिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि टाइम के साथ रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड है. तो अगर हम रेजिस्टेंस को 0 करेंगे तो एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो है हमारा वो 1 हो जाएगा. ठीक है. नाउ व्हाट वील डू नेक्स्ट, today we'll derive the expression for current for this particular special case when B square is less than K square. Okay, well, how can we determine the value of current? We already know by definition I is equal to dq upon dt, and we know this is the expression for charge. So we have to simply differentiate this expression with respect to time and we'll get the value of current. So I is equal to dq upon dt.
where q is q naught into 1 minus k into e raised to power minus bt upon omega into sin omega t plus theta. now फर्स्ट फैक्टर हमारा कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। जो हमारा सेकंड फैक्टर है उसमें दो जगह टाइम का कंपोनेंट है, एक एक्सपोनेंशियल में और एक साइन में। तो हमारे पास डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dq अपॉन dt, q नॉट जो है हमारा वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल का सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हमारा आ गया माइनस क्यू नॉट इंटू के इंटू ई रेज टू पावर माइनस बी टी। ई रेज टू पावर माइनस बी टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई रेज टू पावर माइनस बी टी इंटू माइनस बी डिवाइडेड बाय ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। नेक्स्ट अब साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस क्यू नॉट के ई रेज टू पावर माइनस बी टी अपॉन ओमेगा, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा इंटू ओमेगा। ओमेगा टी प्लस थीटा का डिफरेंशिएशन क्योंकि ओमेगा आएगा, थीटा जो है वो हमारा वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस फैक्टर को हम अब कैसे लिख सकते हैं, अगेन दिस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्यू नॉट बी के अपॉन ओमेगा ई रेज टू पावर माइनस बी टी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस क्यू नॉट के ई रेज टू पावर माइनस बी टी इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। ओमेगा ओमेगा जो है दे विल कैंसिल आउट, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसके बाद वी हैव टू टेक क्यू नॉट इंटू के इंटू ई रेज टू पावर माइनस बी टी कॉमन, तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ गया, ये जो ओमेगा है इसको ब्रैकेट के अंदर ले जाओ और इस फैक्टर को कॉमन ले लो, क्यू नॉट इंटू के इंटू ई रेज टू पावर माइनस बी टी को जब हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचा बी अपॉन ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा इस ओमेगा को बाहर ले जाओ, ठीक है। तो जब हम इस ओमेगा को बाहर ले जाएंगे तो यहाँ पे ओमेगा आ गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे एक ओमेगा का फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेकंड स्टेप क्या होगा हमारा, के से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, तो जो डिवीजन वाली टर्म है उसको हम ब्रैकेट के अंदर ले गए, तो हमारे पास ये वाला फैक्टर आ गया विच इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जो ओमेगा है उसको बाहर कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर में और फिर के से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ठीक है। तो हमारे पास बाहर क्या एक्सप्रेशन रह गई, क्यू नॉट इंटू के स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस बी टी अपॉन ओमेगा, ब्रैकेट में हमारे पास आ गया बी अपॉन के साइन ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस ओमेगा अपॉन के इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। तो करंट की एक्सप्रेशन क्या हो गई, क्यू नॉट के स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस बी टी अपॉन ओमेगा, ब्रैकेट में अब यहाँ पर देखो बी अपॉन के और ओमेगा अपॉन के को हम कॉस थीटा और साइन थीटा लिख सकते हैं रिस्पेक्टिवली। कैसे, हमने जो पहले डेरिवेशन किया था थर्ड स्पेशल केस में, वहां हमने देखा था ओमेगा अपॉन के इज साइन थीटा एंड बी अपॉन के इज कॉस थीटा, सो वी विल डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ओवर हियर। तो हमारे पास b अपॉन के आ गया cos थीटा, ओमेगा अपॉन के हो गया sin थीटा। तो ब्रैकेट में हमारे पास किस तरीके की टर्म आ गई, sin a cos b माइनस cos a sin b। तो sin a cos b माइनस cos a sin b, फॉर्मूला किसका होता है, sin a माइनस b। तो लेट्स से a हमारा ओमेगा t प्लस थीटा है और b हमारा थीटा है, तो sin a cos b माइनस cos a sin b, दिस इज sin a माइनस b। तो साइन ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस थीटा, थीटा थीटा कैंसिल आउट होगा, हमारे पास फाइनली करंट की एक्सप्रेशन क्या आ गई, क्यू नॉट के स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस बी टी अपॉन ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर करंट। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का पूरा केस स्टडी करा जिसमें हमने जर्नल एक्सप्रेशन निकाली थी चार्ज की। उसके बाद हमने तीन स्पेशल केसेस देखे थे, व्हेन बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन के स्क्वायर, इक्वल टू के स्क्वायर, लेस देन के स्क्वायर। जब बी स्क्वायर हमारा लेस देन के स्क्वायर था उसके अंदर हमने देखा
जब हमारा बी स्क्वायर लेंथ के स्क्वायर है तो हमारा जो चार्ज है इट इज बिहेविंग एज डैम्प्ड ऑसिलेटरी चार्ज। फिर हमने करंट की एक्सप्रेशन निकाली बाय कंसीडरिंग आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। करंट की एक्सप्रेशन हमारे पास फाइनली आई क्यू नॉट के स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस बी टी अपॉन ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। अब देखो इस एक्सप्रेशन में हमें क्या दिख रहा है, इस एक्सप्रेशन में हमें एक साइन का फंक्शन दिख रहा है और एक एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन दिख रहा है विद टाइम। रेस्ट ऑफ द क्वांटिटीज कांस्टेंट है। इसका मतलब चार्ज की तरह करंट भी ऑसिलेटरी है, तभी साइन का फंक्शन है। ठीक है, लेकिन कैसा ऑसिलेटरी है, डैम्प्ड या अनडैम्प्ड? ये डैम्प्ड ऑसिलेटरी है क्योंकि ई रेज़ टू पावर माइनस बी टी जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है एम्पलीट्यूड में, मतलब दिस इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग और साथ के साथ ऑसिलेटरी इन कैरेक्टर भी है। तो लाइक चार्ज करंट इज ऑल्सो डैम्प्ड ऑसिलेटरी इन कैरेक्टर। नेक्स्ट करंट के बाद अब हम देखेंगे पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस। पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस कैसे निकालेंगे? टाइम पीरियड क्या होता है? बाय फॉर्मूला 2 पाई अपॉन ओमेगा, और ओमेगा हमने क्या कंसीडर किया था? देखो यहाँ पे मैं दोबारा दिखा देती हूँ। ओमेगा हमने कंसीडर किया था अंडर रूट के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ओमेगा ओवर हेयर, तो हमारे पास टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एंड व्हाट वाज के स्क्वायर? के स्क्वायर हमने लेट किया था 1 अपॉन एल सी, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ के स्क्वायर एंड बी। के स्क्वायर हमारा 1 अपॉन एल सी था और बी हमारा आर अपॉन 2 एल था। तो अगर बी आर अपॉन 2 एल है तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर अपॉन 4 एल स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस। नेक्स्ट, अगर ये टाइम पीरियड है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? वी ऑल नो बाय डेफिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड, सो म्यू इज 1 अपॉन टी। तो म्यू हमारा आ गया 1 अपॉन 2 पाई इंटू अंडर रूट 1 अपॉन एल सी माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4 एल स्क्वायर। अब ये जो एक्सप्रेशन है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, इन दोनों की एक्सप्रेशंस को याद रखना है फॉर न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम में जो है इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, तो इनकी फाइनल एक्सप्रेशंस को याद रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम फिर से ये चीज देखेंगे कि कैसे ये जो LCR सर्किट का केस है LC सर्किट में कन्वर्ट हो जाता है व्हेन वी पुट R टू बी इक्वल टू 0। जब LCR में से हम R हटा देंगे तो LCR सर्किट LC में रिड्यूस हो जाएगा। LC सर्किट में हमने बिहेवियर क्या देखा था? चार्ज का ऑसिलेटरी बिहेवियर देखा था, अनडैम्प्ड ऑसिलेटरी, क्योंकि वहां रेजिस्टेंस नहीं था। यहाँ पर रेजिस्टेंस नॉन जीरो है, तो यहाँ पर जो चार्ज का बिहेवियर है वो डैम्प्ड ऑसिलेटरी है, अनडैम्प्ड ऑसिलेटरी नहीं है। और वहां पर हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस निकाले थे, वो हमारे आए थे 1 अपॉन 2 पाई इंटू अंडर रूट एल सी। ठीक है, यहाँ पर हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस क्या है? बाय दिस एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन में इफ आई सब्स्टिट्यूट आर इक्वल टू 0, ठीक है, तो मेरा टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों क्या हो जाएंगे? इफ आई सब्स्टिट्यूट आर 0 और इफ आई से दैट आर इज वेरी स्मॉल, तो टाइम पीरियड हमारा कितना हो गया? आर को हटा दो, आर को 0 पुट करेंगे, ये टर्म चली गई, तो टी इज 2 पाई अंडर रूट एल सी, और म्यू हमारा क्या हो जाएगा? इसको हटा दो, म्यू हमारा हो गया 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। ठीक है, तो यही एक्सप्रेशन जो है हमारी LC सर्किट में आई थी। ठीक है, मैं एक बार दिखा देती हूँ, देखना चाहते हो तो। ये हमारा केस था ना, हाँ, दिस इज फॉर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू एन इंडक्टर ओनली। इसमें हमने देखो ऑलरेडी निकाला था टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल सी था, और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हमारी 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी थी। और यहाँ पे हमने ऑलरेडी देखा था जो चार्ज जो है इट इज बेसिकली एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटरी बिहेवियर। ठीक है, तो अब LCR सर्किट में क्या हो गया था? LCR सर्किट में हमारा ऑसिलेटरी बिहेवियर तो था, पर अनडैम्प्ड की जगह डैम्प्ड ऑसिलेटरी बिहेवियर आया है। ठीक है, तो हम एक तरीके से कह सकते हैं ये जो थर्ड केस है LCR सर्किट का, जो थर्ड स्पेशल केस है व्हेन बी स्क्वायर लेस देन के स्क्वायर,
दिस केस जो है, दिस reduces to the LC circuit case when we kept R to be very small, that means when R is nearly equal to 0. उस केस में LCR circuit जो है हमारा, it reduces to LC circuit. So LC circuit is basically, you can say, a special case of LCR circuit. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फिनिश हो गया चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू अ LCR सर्किट. अब इसके बाद नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर थ्रू एन LCR सर्किट. अब डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर के लिए हम क्या करेंगे, वही जैसे हमने सारे केसेस में करा है वही केस यहाँ पे करेंगे. अब डिस्चार्ज का हम केस स्टडी कर रहे हैं, डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर. तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमारा केस होगा व्हेन वी रिमूव द की. जैसे ही हम की को रिलीज करेंगे क्या होगा, कैपेसिटर जो है इट विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग थ्रू रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस. तो उस केस में हमारी जो इक्वेशन है ईएमएफ की वो क्या हो जाएगी, टोटल हमारी इक्वेशन क्या होती है, E इज इक्वल टू ई एल प्लस ई सी प्लस ई आर. ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास हम कौन सा केस कर रहे हैं, डिस्चार्जिंग का. तो दैट मीन्स व्हेन की इज रिलीज्ड, तो की हमने रिलीज कर दी, इसका मतलब देयर इज नो सोर्स ऑफ ईएमएफ इन द सर्किट ड्यूरिंग डिस्चार्ज. तो हमारी जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, E इज इक्वल टू, अब कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं है तो E इज इक्वल टू 0 एंड दैट इज इक्वल टू ई एल प्लस ई एल. हमारी क्या हो गई, हमारी ई एल हो गई पोटेंशियल अक्रॉस द इंडक्टर, प्लस ई सी अक्रॉस द कैपेसिटर हो गई, प्लस ई आर होगा विच इज अक्रॉस द रेजिस्टेंस. सबको पता है ई एल की वैल्यू, ई सी की वैल्यू और ई आर की वैल्यू, ये हम बहुत बार देख चुके हैं. ई एल हमारा होगा एल इंटू डी आई अपॉन डी टी, प्लस ई आर हमारा होगा आर इंटू आई, प्लस ई सी हमारा होगा क्यू अपॉन सी एंड दैट इज इक्वल टू 0. अब डिस्चार्जिंग वाला जो केस है ये डिट्टो हमारा चार्जिंग वाले केस की तरह है, बस एक डिफरेंस है इक्वेशन में कि यहाँ पर अब E की जगह 0 है. बाकी बिल्कुल उसी तरीके से हमें प्रोसीड करना है जैसे हमने चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर किया था. तो सबसे पहले इसके बाद हम सब्स्टिट्यूट करेंगे करंट को, I को एज डी क्यू अपॉन डी टी. तो हमारे पास इक्वेशन आ गई L इंटू d2q over dt square plus r into dq over dt plus q upon c equal to 0. Now this can be rewritten as d2q over dt square plus r upon l dq over dt plus q upon lc equal to 0. अब जैसे हमने चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का केस किया था वहां पे हमने सब्स्टिट्यूट किया था r अपॉन l को एज 2b और k स्क्वायर को हमने सब्स्टिट्यूट किया था एज 1 अपॉन LC और 1 अपॉन LC को हमने सब्स्टिट्यूट किया था एज k स्क्वायर. तो सेम सब्स्टिट्यूशंस हम यहाँ पर भी करेंगे. r अपॉन l को हम 2b से रिप्लेस करेंगे और 1 अपॉन LC को हम k स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे. फिर एंड ऑफ द डेरिवेशन में हम फिर से 2b को r अपॉन l सब्स्टिट्यूट कर देंगे और k स्क्वायर को 1 अपॉन LC. मैंने पहले ही बताया था जब हमने चार्जिंग वाला केस किया था कि अगर उसमें थोड़ी सी भी डाउट है तो जब हम डिस्चार्जिंग वाला केस करेंगे तो चार्जिंग वाला भी क्लियर हो जाएगा और डिस्चार्जिंग वाला तो हो ही जाएगा, क्योंकि डिस्चार्जिंग वाला केस जो है ऑब्वियसली वो सिंपल है एज कम्पेयर टू चार्जिंग वाला केस, क्योंकि इसमें जो इक्वेशन है हमारी वो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, या हमारा ऑलरेडी 0 है, ई नहीं है. तो अब हमारे पास आफ्टर सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन हो गई d2q over dt square plus 2b into dq over dt plus k square q equal to 0. तो हमारे पास फाइनली ये इक्वेशन आ गई d2q over dt square plus 2b dq over dt plus k square q equal to 0, which is given by equation 4.37. चार्जिंग वाले केस में मैं एक बार दोबारा दिखा देती हूँ. हमारे पास ये इक्वेशन चार्जिंग वाले केस में कहाँ आई थी, देखो ये वाली इक्वेशन जो इक्वेशन 26 है. चार्जिंग वाले केस में हमारे पास एक एडिशनल टर्म थी
ये जो हमारी सोर्स ऑफ ईएमएफ थी, ठीक है। तो इसको हमने गेट रीड करने के लिए ये लेट किया था x को q माइनस e अपॉन k स्क्वायर l, पर डिस्चार्जिंग वाले केस में हमारे पास कोई e की एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि डिस्चार्जिंग का केस है, दैट मींस व्हेन की इज रिलीज सो देयर इज नो सोर्स ऑफ ईएमएफ इन द सर्किट। तो इसमें क्या हुआ, हमारे पास डिस्चार्जिंग वाले केस में डायरेक्टली हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन आ गई। तो इस सेम इक्वेशन है, जैसी ये इक्वेशन थी हमारी वैसी डिस्चार्जिंग वाले में आ गई, ठीक है। तो हम उसी तरीके से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जैसे हमने चार्जिंग में करा था, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी, जिसका ट्रायल सोल्यूशन हमने लिया था e रेज़ टू पावर अल्फा टी। तो यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन है वो x के टर्म्स में, वहां पे जो हमारी इक्वेशन है वो q के टर्म्स में है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो हमारे पास ये इक्वेशन आई थी x के टर्म्स में, अब ये इक्वेशन हमारी q के टर्म्स में है, ठीक है। तो डिस्चार्जिंग वाले केस में हमारे पास सिंपल क्या आ गया, देखो दिस इज आवर डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज सेकंड इन ऑर्डर, ठीक है। तो इसका ट्रायल सोल्यूशन हम उसी तरीके से लेंगे जैसे हमने चार्जिंग में लिया था। Here instead of x we have q, तो q is equal to e raised to power alpha t, ठीक है। तो dq over dt क्या होगा, alpha into e raised to power alpha t, then d2q over dt square होगा alpha square into e raised to power alpha t. Now substitute these values in this equation, क्योंकि अगर ये इसका solution है तो ये इस equation को satisfy करेगा। तो इस equation में put कर दो, तो हमारे पास ये equation आई, and this is quadratic equation in alpha, जिसके रूट्स क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा दोगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो उसका रूट्स क्या होते हैं उसके, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये सब मैं ऑलरेडी बता चुकी थी जब हमने चार्जिंग वाला केस किया था, ठीक है। तो अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अल्फा, इसके हमारे दो रूट्स आए, ठीक है। तो सिंस अल्फा हैज टू वैल्यूज, तो जो जनरल सोल्यूशन है इक्वेशन 4.37 का, इसका जैसे डिट्टो चार्जिंग वाला केस था बिल्कुल उसी तरीके से जनरल सोल्यूशन हमारा ये आ गया। क्या डिफरेंस है, बस वहां पे x इज इक्वल टू था, यहाँ q इक्वल टू है, ठीक है। क्योंकि वहां पर हमारी जो इक्वेशन थी ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन x में थी, अब ये हमारी पहले ही q में है, ठीक है। तो हमारे पास q की एक्सप्रेशन क्या आ गई, a इंटू ई रेज टू पावर माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू टी प्लस कैपिटल B इंटू ई रेज टू पावर माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू टी। तो ये यहाँ तक हमारा डिट्टो केस वैसा ही रहा है बिल्कुल जैसे चार्जिंग वाला केस था, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, टू फाइंड दीज वैल्यूज ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स a एंड b, ठीक है। तो इसके अब हमें कांस्टेंट्स जो है वो निकालने हैं, तो वो कांस्टेंट्स हम कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ इनिशियल कंडीशंस। हमारे पास दो इनिशियल कंडीशन है, उन्हीं जैसे हमने चार्जिंग वाले केस में दो इनिशियल कंडीशंस की हेल्प से कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यू निकाली थी। फिर जब हम इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास जर्नल एक्सप्रेशन आ जाएगी ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन LCR सर्किट। वहां पे हमारे पास पहले x आया था, फिर हमने x से q निकाला था। यहाँ पे हमारे पास x का फैक्टर नहीं है, यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टली q का फैक्टर है, ठीक है। तो हमारे पास q की जनरल एक्सप्रेशन आ गई है ये, ठीक है। बस इसमें अब हमें a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते ही हमारे पास q की एक्सप्रेशन आ जाएगी, जो यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर थ्रू अ LCR सर्किट। फिर जैसे ही हमारे पास Q की एक्सप्रेशन आ जाएगी, फिर उसी तरीके से हम तीन स्पेशल केसेस स्टडी करेंगे, व्हेन B स्क्वायर इज ग्रेटर देन K स्क्वायर, इक्वल टू K स्क्वायर एंड लेस देन K स्क्वायर। फिर हम करंट की एक्सप्रेशन निकालेंगे एंड देन पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस, डिट्टो जैसे हमने चार्जिंग के लिए किया। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, टू फाइंड दीज आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। तो इनको हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ टू इनिशियल कंडीशंस, ठीक है। पहली इनिशियल कंडीशन क्या होगी, एट t इक्वल टू 0,
जैसे ही हमने की को रिलीज किया, एट टी इक्वल टू 0 हमारा जो चार्ज है वो कितना है, मैक्सिमम। एट टी इक्वल टू 0 कैपेसिटर फुल्ली चार्ज्ड है, सो Q इज इक्वल टू Q नॉट। चार्जिंग वाले केस में पहली इनिशियल कंडीशन हमारे पास क्या थी, एट t equal to 0 q is equal to 0 and at t equal to 0 I is equal to 0। यहाँ पर हमारे पास क्या कंडीशंस है, दो हैं। एक है t equal to 0 चार्ज इज मैक्सिमम, q is equal to q नॉट। दूसरी इनिशियल कंडीशन है at t equal to 0 करंट इज 0। करंट 0 क्यों होगा, क्योंकि चार्ज हमारा कांस्टेंट है, मैक्सिमम है q नॉट। तो करंट क्या होगा t equal to 0 dq over dt। Q हमारा किसके इक्वल है, Q नॉट। Q नॉट हमारा कांस्टेंट है, तो करंट हमारा हो गया dq over dt दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये दो इनिशियल कंडीशंस जो है इनकी हेल्प से हम नेक्स्ट क्लास में आर्बिट्री कांस्टेंट्स a और b की वैल्यू निकालेंगे, उनको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन चार्ज की, और फिर हम उससे आगे स्पेशल केसेस जो है उनको स्टडी करेंगे। So this we see in next class.